Welcome students. Previously we had started the chapter number 2, that is numbers 1 to 10. Okay, today I will be continuing with it. Okay. Now in the previous lecture we had already studied how we can count. Okay. Now here I am going to tell you, give you an example. Okay. Now can you see this plate? Now can you tell me how many laddus are there in the plate? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 laddus in the plate. Okay, now you will see what I am going to do with the laddus. Okay, so there are 6 laddus in the plate. I will start distributing the laddus to the children one by one. ठीक है, एक एक करके मैं बच्चों को लड्डूस दूंगी. ठीक है. Now here comes John. Now I am going to give him one laddu. I gave him one laddu. Now can you tell me how many laddus are there in the plate? Yes, we will count 1, 2, 3, 4 and 5. Now there are 5 laddus in the plate. Okay. Now next comes Ali. Okay. Now I am going to give him one laddu. Now let us count how many laddus are there in the plate. 1, 2, 3 and 4. Okay, so the answer is 4. Okay, now next comes, okay, this sweet little boy. Now I am also going to give him one laddu. I gave him one laddu. Now tell me how many laddus are there in the plate. Let us count. 1, 2 and 3. So there are 3 laddus in the plate. Now let me see. Okay, this is the sweet little girl Ria. I am going to give her one laddu. Now can you tell me how many laddus are there in the plate? Quite simple. 1 and 2. So there are 2 laddus in the plate. Okay. Now here comes another sweet little girl. So I am going to give her one more laddu. Okay. One laddu I gave it to her. Now you tell me how many laddus are there in the plate. Quite simple. Only one laddu. Okay. Now the last girl has come and I am going, there is only one laddu, so I give it to her. Now I am asking you a question, that how many laddus are there in the plate? Can you tell me? Yes? Now nothing. Okay. The plate is empty. There are no laddus inside the plate. ठीक है, nothing. लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, my question is कि हाउ मैनी. ओके, तो जब नथिंग होता है, ओके, या एम्प्टी होता है, तो अगर मुझे उसे नंबर्स में बताना होता है तो आई विल यूज़ द नंबर 0. ठीक है, नथिंग का मतलब होता है 0. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर कोई चीज़ नहीं है, ओके, अगर आप शेल्फ पे जा रहे हो और किसी ने पूछ लिया कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द शेल्फ, आप देख रहे हो द शेल्फ इज एम्प्टी, शेल्फ पे तो एक भी बुक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर 0 बुक्स ऑन द शेल्फ. ओके, सो नथिंग के लिए जो नंबर डिनोट करते हैं वो है 0. ओके, नाउ डू यू हैव अ नेम? दिस इज माई क्वेश्चन. आपके पास नाम है? ऑफ कोर्स है, राइट? Now I also have a name. You know my name, Deepika, right? सबके पास नाम होता है. Numbers के पास भी नाम होता है. Numbers also have a name. Now so and उन names को हम क्या बुलाते हैं? It is called number names. समझ में आ गया? So we are going to study the number names, names of the number. ठीक है? Now we are going to, अभी सिर्फ हम 0 से लेके 10 तक के नंबर नेम्स पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में वी विल बी मूविंग ऑन टू हायर नंबर्स. ठीक है. नाउ 0 की स्पेलिंग क्या है? व्हाट इज द नंबर नेम? ZERO 0. 1 ONE 1. 2 TWO 2. 3 THREE 3. 4 FOUR 4. 5 FIVE 5. 6 SIX 6. 7 SEVEN 7.
8, EIGHT 8, 9, NINE 9, 10, TEN 10. Now you will learn these number names thoroughly. ठीक है, और मैं आपको असाइनमेंट में भी ये दूंगी. Okay, now let us see what comes next. Now numbers can be written in two orders. ठीक है, हर नंबर्स जो है वो हम दो तरह से लिख सकते हैं. वन इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, नंबर्स बढ़ते जाते हैं लाइक दिस. पहले 0 आएगा, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो यू कैन सी हियर कि नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर. एंड अनदर ऑर्डर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, नंबर्स छोटे होते जाएंगे. ठीक है, घटते जाएंगे. सो दैट इज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है, सो दीज आर द टू ऑर्डर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. नंबर्स दो ऑर्डर्स में ही हम लिख सकते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, now what comes, I have a question, what comes after the number 5? now यहाँ पे एक new word है, you have a new term and that is after. now what do you mean by after? आपको कैसे पता चलेगा what comes after the number 5? what you will do is you will count one forward. forward का मतलब क्या होता है, आगे. ठीक है, कैसे करोगे आप ना, आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, कैन यू सी द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने नंबर्स लिखे हैं जैसे हम लिखते हैं. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, कैन यू सी दिस बॉल हियर, नाउ आई विल जंप. हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर द नंबर 5. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 5 के ऊपर अपने बॉल को रखूँगी एंड देन आई विल जंप 1 टाइम्स फॉरवर्ड. सिर्फ एक बार आप जंप करोगे. ठीक है, अब मैंने जंप किया फॉरवर्ड. कहाँ पे आ गई मैं, 6 पे. सो व्हाट कम्स आफ्टर द नंबर 5? इट इज 6. ठीक है, नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. व्हाट कम्स आफ्टर द नंबर 3? 3 के तो हमें क्या करना है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, यू हैव टू काउंट 1 फॉरवर्ड, आगे काउंट करोगे. ठीक है, हियर वी हैव द टेबल अगेन ऑफ द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो हम क्या करेंगे, अपने बॉल को कहाँ रखेंगे, ऑन द नंबर 3. ठीक है, एंड वी विल जंप फॉरवर्ड. यस, जंप किया हमने फॉरवर्ड, किस पे आ गए हम, 4 पे. सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 4. समझ में आ गया आपको आफ्टर? अगर कोई आपसे आफ्टर पूछता है तो आप उस नंबर से क्या करोगे, आगे काउंट करोगे. ओके, यू विल काउंट फॉरवर्ड. नाउ वन मोर क्वेश्चन आई हैव, व्हाट कम्स बिफोर द नंबर 5? नाउ यहाँ पे एक न्यू टर्म आपने सीखा है, बिफोर. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर बिफोर, अरे बाय द टर्म बिफोर. ठीक है, बिफोर का क्या मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है यू हैव टू काउंट 1 बैकवर्ड. कहाँ काउंट करोगे आप, बैकवर्ड. बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे. ठीक है, फिर से ये वाला टेबल ले लिया हमने, हमें किस क्या पूछा है, कौन से नंबर के पीछे पूछा है, नंबर 5. ठीक है, हमें पूछा है नंबर 5 से पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर द नंबर 5. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बॉल कहाँ प्लेस करूँगी मैं, यस, ऑन द नंबर 5. ठीक है, 5 पे प्लेस किया. नाउ मुझे पूछा है बिफोर, तो मैं कहाँ पे जंप करूँगी, बैकवर्ड. कहाँ आ गया मेरा बॉल, 4 पे. तो द आंसर इज 4. समझ में आ गया. आफ्टर अगर बोलेंगे तो यू विल जंप फॉरवर्ड, और अगर आपको बिफोर बोलेंगे तो यू विल जंप बैकवर्ड. ठीक है, ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कम्स बिफोर द नंबर 3? 3 के बिफोर क्या आता है. ओके, ना हियर वी हैव द टेबल. तो हमें कहाँ पे, ना बॉल को किस पे रखेंगे, नंबर 3 पे. ओके, वी विल कीप द बॉल ऑन नंबर 3 एंड देन वी विल जंप 1 बैकवर्ड. पीछे जंप किया, व्हाट इज, सो द आंसर दैट वी गॉट इज
2, ठीक है। तो क्या आता है नंबर 3, व्हाट कम्स बिफोर नंबर 3, इट इज़ 2, ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर एंड व्हाट यू मीन बाय बिफोर, ठीक है। नाउ डू यू लाइक क्रीम बिस्किट्स, आपको क्रीम बिस्किट्स पसंद है? आई नो सबको क्रीम बिस्किट्स पसंद आती हैं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर इन बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं, ओके तो बीच में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन बिटवीन। नाउ बिटवीन का मतलब क्या होता है, मिडिल, ओके तो मिडिल में क्या है, इट इज द क्रीम, समझ में आ गया। बिटवीन का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज देयर इन द मिडिल, ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में। तो सेम नंबर्स में भी होता है। नंबर्स जब भी हम ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर में लिखते हैं तो देर आर सम नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में कोई नंबर आ सकता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एन एग्जाम्पल। ना ये दिख रहा है विच नंबर कम्स बिटवीन 7 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 7 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। सो हाउ यू विल सॉल्व इट। नाउ कैन यू सी हियर, ये टेबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू विल ऑलवेज राइट इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर जब भी आप आफ्टर बिफोर बिटवीन के सम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 7 कहाँ पे है, ये है 7, राइट। नाउ वेयर इज 9, दिस इज 9, ठीक है, 7 और 9, ओके। ना इसके बीच में देर इज अ गैप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, द नंबर 8। सो व्हाट विच नंबर कम्स बिटवीन 7 एंड 9। अब ये समझ लो कि ये एक बिस्किट है, 9 इज अनदर बिस्किट और बीच में ये क्रीम कौन है, 8, ठीक है। सो विच नंबर कम्स बिटवीन 7 एंड 9, 8, द आंसर इज 8। नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन, ठीक है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे तो पहले आएगा बिफोर नंबर, फिर बिटवीन एंड देन आफ्टर, ठीक है। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, ठीक है। और ये किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमेशा रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आपके नंबर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ, ठीक है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा है, द नंबर 5 कम्स इन बिटवीन 6 एंड डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ये जो नंबर 5 है वो किसके बीच में। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, नाउ यू नो द फॉर्मूला बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा। क्या करोगे आप पता है, यू ड्रॉ 3 बॉक्सेस, ठीक है। 3 बॉक्सेस हो गए बिफोर, बिटवीन और आफ्टर के। नाउ यू नो दैट 5 कम्स इन बिटवीन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, तो आप 5 को कहाँ लिखोगे, बीच वाले बॉक्स में, ठीक है ना। ये जो नंबर 6 है, अब ये बताइए कि 6 जो है वो 5 से बिगर है या स्मॉलर है। आई नो एवरीवन नोज द आंसर, इट इज बिगर। तो आप उसको कहाँ लिखोगे, आफ्टर में, ठीक है, आगे लिखोगे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, ऑब्वियसली क्या आएगा बिफोर, 5 के बिफोर क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। सो द नंबर 5 कम्स इन बिटवीन, किसके आता है, 6 एंड 4। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, बिफोर, बिटवीन और आफ्टर, और नंबर क्या हो जाएंगे, हमेशा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है डैश कम्स इन बिटवीन 8 एंड 6, ठीक है। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, कौन सा नंबर आता है 8 और 6 के बीच में। लेट अस सी। नाउ अगेन आई विल मेक 3 बॉक्सेस, 1 2 एंड 3 बॉक्सेस मैंने बना लिए ना। मुझे क्या पूछा है, डैश कम्स इन बिटवीन, तो ऑब्वियसली बीच में तो कोई नंबर नहीं लिखूंगी मैं ना। आप ये बताओ 8 और 6 में से कौन सा बड़ा है, यस 8 बड़ा है। तो 8 किस में आएगा, आफ्टर वाले बॉक्स में आएगा या बिफोर वाले बॉक्स में आएगा, यस
आफ्टर वाले बॉक्स में 8 आएगा और बिफोर वाले बॉक्स में कौन आ जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है। बिकॉज आफ्टर में हमेशा बड़ा नंबर होगा, बिफोर में हमेशा छोटा नंबर होगा। तो अब बताइए आपकी इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, ऑब्वियसली 7। सो द आंसर इज 7 comes in between 8 and 6, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन रिलेटेड टू आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, फील फ्री टू कॉल मी। मैं आपको वीडियो कॉल करके और दोबारा से ये कंसेप्ट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।